Good morning, students. In the earlier lecture, we discussed about the meaning of sports injuries and what is the difference between the day-to-day injuries and the sports injuries. The general life injuries are unavoidable, but the sports injuries are avoidable by following the rules and regulation and use the proper equipments of the games. So this is the main difference between general life injuries and the sports injuries. Today we will talk about the classification of sports injuries. There are three types of injuries in your syllabus, that is soft tissue injuries, joint injuries and bone injuries. In soft tissue injuries it can be divided into four types, that is abrasion, रगड़ लगना, contusion, नील पड़ना, sprain, मोच आना and strain, खिंच जाना. So these are the four type of soft tissues injuries. The next is joint injuries. Dislocation of joints. The next is bone injuries. Generally in bones only fractures are there. So there are six type of fractures: stress, green stick, comminuted, transverse, open and simple fractures. So these are your bone injuries. So, what is the causes of sports injuries? Why injuries is there in sports? Generally said that being aware of the risk factor is far better than preventing them. मीन्स जब आपको पता हो कि यहाँ चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि चोट लगने के बाद उसको क्योर किया जाए. सो you should be aware of the risk factor. इसे बचाया जा सकता है कैसे? स्ट्रेंथनिंग और मसल्स, और अपनी मसल्स को प्रॉपर स्ट्रेंथ देके, आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, प्रॉपर एनर्जी दैट योर मसल नीड्स एंड गेटिंग रेस्ट. आफ्टर डूइंग द वर्क you should do the proper rest of the muscle, and working at a proper pace is essential for staying healthy. Whenever you do any work, you should do the work on a proper pace. You don't need to be hurry. जल्दबाजी में कोई भी काम आपकी इंजरीज को बढ़ाता है. सो इसके कॉजेज क्या क्या हुए? ओवर यूज द मसल्स. व्हेन योर मसल्स आर इन फटीक एंड यू आर यूजिंग दैम, जब आपके मसल्स काम करके थक चुके हों तब आप उसका यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ओवर यूज द मसल्स. नेक्स्ट इज स्टॉप एंड ट्विस्ट. इन मैनी स्पोर्ट्स देयर इज़ अ मूवमेंट टू स्टॉप एंड ट्विस्ट, लाइक इन बास्केटबॉल, फुटबॉल. सो दे आपका जो बॉडी बैलेंस है वो आपका टूट जाता है. So stop and twist is the cause of these sports injuries. Fall down during activity. Generally when we playing any sports, we fall down due to our footwear slip कर जाना, due to the ground level. So this can be a cause of sports injuries. Improper equipments. When we don't use the proper equipments of the sports, when we don't use the guards, elbow guard, knee guard, so this can be a cause of sports injuries. Poor warm up. So whenever we play any sports, we should do the proper warming up exercise of our muscles. When we get up in the morning, our muscles are stiff, so before doing any exercise we should do the proper warming up exercise to be a flexible position. So without warm up, when we play any sports, then it can be a cause of sports injuries. So today we will discuss about the soft tissue injuries.
Soft tissue injuries, what do you mean? Meaning of soft tissues injuries. This is the most common injuries in sports. Soft tissue refer to tissues that connect and support the organ of the body. ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपके बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मसल्स, लिगामेंट्स. सो दीज आर द सॉफ्ट टिश्यूज़ जिससे आपकी बॉडी कनेक्ट होती है एक दूसरे से, ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं बॉडी के ऑर्गन्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी. फर्स्ट इज़ एब्रेशन. एब्रेशन मीन्स रगड़ लगना. जनरली वी कैन से दैट रगड़ लग गई, स्लिप करने के बाद रगड़ लग जाना. इट इज़ ए स्क्रैपिंग एनर्जी टू द स्किन ड्यू टू रबिंग एंड स्क्रबिंग एंड पार्ट ऑफ द स्किन इज़ लॉस्ट. जब आप रगड़ लग जाते हैं और आपके स्किन का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए, ऊपर की स्किन उतर जाए, सो उसे बोलते हैं एब्रेशन. इट अकर्स ऑन द स्किन विच इज़ वेरी क्लोज टू द बोन्स. ये आपकी जनरली वहाँ लगती है जहाँ पे आपकी बोन्स के साथ जो आपकी स्किन अटैच होती है. इट कैन बी इन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल. सो ये आपको किसी भी गेम में लग सकती है. इसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हैं? यूज़ गुड क्वालिटीज़ ऑफ इक्विपमेंट्स. वन शुड यूज़ द गुड क्वालिटीज़ ऑफ इक्विपमेंट ऑफ एनी गेम. Every game specified the equipments of these playing equipments. So we should use the good quality of playing equipments. You should use the good quality of footwear ताकि आप स्लिप ना हो, आपकी जो शूज़ हैं वो आपके ग्राउंड से अटैच रहें. So you should use the good quality of footwear. ऑलवेज़ प्ले ऑन अ वेल लेवल्ड प्ले फील्ड. जब भी आप किसी भी गेम को प्ले करने के लिए जाएं तो वो ग्राउंड का लेवल जो है वो प्लेन होना चाहिए. ऊंचा नीचा गड्ढे या ऐसा कुछ उस ग्राउंड में नहीं होना चाहिए. ट्राई टू अवॉइड फॉलिंग. गिरने से बचे. मीन्स हम स्टाइल के लिए या बॉल कलेक्ट करने के लिए या हम स्लिप कर जाते हैं, स्ट्राइड मार देते हैं, तो इसलिए ट्राई टू अवॉइड फॉलिंग. सो दीज आर द प्रिवेंशंस. और इसकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं? जब आपको रगड़ लग जाए तो इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या हैं? इट कैन ईजिली गेट अफेक्टेड, सो क्लीन द एरिया थोरोली. यह आपका ईजिली इफ़ेक्ट हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है. सो इसको थोरोली क्लीन करें. और आफ्टर क्लीनिंग द एरिया यूज़ अ ड्रेसिंग टू कवर द वाउंड. और उस घाव को कवर करने के लिए ड्रेसिंग का यूज़ करें. द ड्रेसिंग शुड बी चेंज्ड इन एवरी फ्यू डेज़. और ड्रेसिंग को हर 2 या 3 दिन के बाद चेंज करते रहें, इससे आपका घाव जल्दी भर जाएगा. सो दीज आर द कॉजेज़, प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एब्रेशन. नेक्स्ट इज़ कंट्यूशन. कंट्यूशन जनरली मीन्स नील पड़ना. It is the muscle injury which occurs because of the direct blow against skin or direct hit of any sports equipment. Generally, we see that when we hit someone, then it became blue, spot became blue. So उसे बोलते हैं नील पड़ जाना. It is your inner tissue damage. आपके जो स्किन के अंदर के जो टिश्यू हैं वो डैमेज होते हैं इसमें, कंट्यूशन में. एंड द स्पॉट बिकम ब्लू एंड ब्लड स्प्रेड्स अंडर द स्किन. और जहाँ पे वो आपको हिट लगती है वो स्पॉट आपका ब्लू हो जाता है. एंड इट स्प्रेड्स, द ब्लड स्प्रेड्स अंडर द स्किन बिकॉज ब्लड वेसल्स आर ब्रोकन. और जो ब्लड है वो आपके स्किन के अंदर ही स्प्रेड हो जाता है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूट जाती हैं. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्यूशन, नील पड़ जाना. इसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, कैसे बचा जा सकता है इससे? अवॉइड केयरलेसनेस एंड कंसंट्रेट ऑन द गेम.
We should not play any game with carelessness, and we should do the full concentrate on the game. We should follow the proper rules and regulations of the game. Use good quality of equipments. So these are the preventions in contusion. इसकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं? इसकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट है वो होती है स्वेलिंग से बचना, कि आपको स्वेलिंग से बचना है, स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए, स्टॉप एंड रिड्यूस द स्वेलिंग। और इस स्वेलिंग से बचने का एक मेथड होता है प्राइस मेथड, PRICE। P को बोलते हैं प्रोटेक्शन, R को बोलते हैं रेस्ट, I से आइसिंग, C से कंप्रेशन एंड E से एलिवेशन। आप सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करो, जहाँ पे भी आपको चोट लगी है उसको पहले प्रोटेक्ट करो, फिर उसको रेस्ट दो, रेस्ट के बाद उसके ऊपर आइसिंग करो, आइसिंग के बाद कंप्रेशन होता है आपकी जो मेडिकल शॉप्स हैं उस पर बैंडेजेस मिलती हैं जो आपका स्वेलिंग होने से बचाती हैं, आप उन बैंडेजेस के द्वारा उसको कंप्रेस करो। देन होता है एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स जैसे आपके एंकल पे चोट लगी है, आपने सब कुछ कर लिया, आइसिंग कर लिया, एलिवेशन कंप्रेशन कर लिया, तो उसको रेस्ट देने के लिए, उसको उसी पोजीशन में रखने के लिए नीचे पिलो रख के उसको ऐसे रख के लेट जाओ, तो उसको हिलाना डुलाना नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड द प्राइस मेथड, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। द नेक्स्ट इंजरी इज स्प्रेन। स्प्रेन बोलते हैं मोच आ जाना। इंजरी ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। आपकी ये जो मोच आने की जो इंजरी है ये लिगामेंट से जुड़ी होती है। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स वो होते हैं जो जॉइंट्स, इट इज़ अ टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट ऑफ द जॉइंट्स और टिश्यूज़ राउंड द जॉइंट्स, जो आपके जॉइंट्स के चारों तरफ, जैसे एंकल जॉइंट है आपका, उसके चारों तरफ जो जिसको जोड़ते हैं, टिश्यूज़ जो जोड़ते हैं वो टूट जाते हैं, उसे बोलते हैं मोच आ जाना। जनरली एनी लिगामेंट जॉइंट इज़ मेड ऑफ मूव बियॉन्ड दिस लिमिट। ये तब टूटता है जब इन लिगामेंट्स को इनकी लिमिट से ज़्यादा इनसे वर्क किया जाता है, ये इनकी लिमिट से ज़्यादा मूव हो जाते हैं तो मोच आपकी आती है। इसके कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? वॉकिंग एंड एक्सरसाइज ऑन एन अनइवन सरफेस, मीन्स जब आप वॉक कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो सरफेस लेवल नहीं है, आपका पैर गलत पड़ गया, आपका एंगल गलत हो गया पैर का, तो तब आपको मोच आ जाती है। लैंडिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड ड्यूरिंग द फॉल, जब आप जंप करते हो और लैंडिंग गलत हो जाए, आपका प्रॉपर बैलेंस आपकी बॉडी का ना बने और आपका जो एंकल है वो स्ट्रेच हो जाए प्रॉपर, तो आपकी मोच आ जाती है, आपका प्रॉपर उस पर दबाव नहीं पड़ पाता। नेक्स्ट इज़ ओवर एक्सटेंशन व्हेन प्लेइंग बैडमिंटन एंड टेनिस। जब भी आप बैडमिंटन एंड टेनिस खेलते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपका जो लेग्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, आपका बैलेंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाता बॉडी का, सो तब आपका स्प्रेन की प्रॉब्लम, मोच की प्रॉब्लम आ जाती है। सो इसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हैं? प्रॉपर कंडीशनिंग exercises are there, proper warming up exercises are there, proper footwear plays a very important role in every sports. Always play on a well leveled play field, जब भी आप खेलो तो प्ले फील्ड आपकी लेवल्ड होनी चाहिए। और इसकी ट्रीटमेंट अप्लाई प्राइस मेथड, सेम एज जो अभी आपको मैंने कंट्यूशन में बताया था। P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। सो अप्लाई द प्राइस मेथड। द नेक्स्ट इज स्ट्रेन।
Strain is generally happen due to twist and sudden efforts to lift heavy weight and suddenly getting up and moving for exercise. स्ट्रेन मीन्स खींच जाना, आपके लिगामेंट स्ट्रेच हो जाना, सो उसे बोलते हैं स्ट्रेन। मसल्स आपके स्ट्रेच हो गए, वो कब होते हैं? जब आप हैवी वेट उठा लेते हैं या सडनली एकदम उठते हैं और मूव करते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं, सो आपके तब स्ट्रेच हो जाते हैं मसल्स। इसके कोजेज़ क्या क्या हैं? इट इज़ कोज्ड बाय ट्विस्टिंग एंड पुलिंग अ मसल। मतलब जब आप मसल को ट्विस्ट करते हो और मसल खींच जाता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेन। कुछ उठाते हो, मसल्स ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। इट कैन ऑल्सो बी कोज्ड बाय इम्प्रॉपर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स और ओवर स्ट्रेसिंग द मसल। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब आप ज़्यादा हैवी वेट उठा लेते हैं, आपके मसल्स को स्ट्रेस ज़्यादा मिलता है, तो ये भी एक कोज हो सकता है। इट इज़ यूजुअली द रिज़ल्ट ऑफ रेपिटेटिव मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स। जनरली इसका कोज होता है कि जब आप मसल से बार बार आप वर्क करा रहे हैं और आपका मसल ओवर स्ट्रेस हो जाए। प्रिवेंशंस क्या क्या हैं इसकी? प्रॉपर कंडीशनिंग एंड वार्मिंग अप एक्सरसाइज। कुछ भी वर्क करने से पहले अपनी मसल्स को प्रॉपर स्टिफनेस को दूर करने के लिए वार्मिंग अप एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एडिक्वेट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिफोर द प्रैक्टिस और कंपटीशन। कोई भी कंपटीशन और प्रैक्टिस सेशन से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी नेसेसरी। आप अपनी मसल्स को स्ट्रेच करो ताकि वो कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी हो सके। डेवलप प्रॉपर स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ देना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपकी बॉडी का वेट बर्दाश्त कर पाते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सेम अप्लाई द प्राइस मेथड। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। थैंक यू वेरी मच।